राजबाड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग 60 को तृणमूल कांग्रेस छात्र संगठन एवं युवा तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने रास्ता जाम कर ईडी एवं सीबीआई के खिलाफ प्रदर्शन किया। सियारसोल राजबाड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग 60 को तृणमूल कांग्रेस छात्र संगठन एवं युवा तृणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने रास्ता जाम कर ईडी एवं सीबीआई के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। लगभग 20 मिनट तक जारी इस आंदोलन की वजह से पूरा शहर लगभग 1 घंटा तक प्रभावित रहा। যারা দুর্নীতিগ্রস্ত মানুষ তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ কাজে লাগিয়ে চলবে না, বাংলাতে এটা চলবে না। আজকে তো হচ্ছে বিএসএফ কোথায় ছিল? সেই বিএসএফ কোথায় ছিল যার আন্ডারে অমিত শাহর আন্ডারে বিএসএফ আছে? যদি কয়লা চুরি হয়ে থাকে আসানসোল থেকে তাহলে সিআইএসএফ কি করছিল? সিআইএসএফ কি করছিল? प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि ईडी एवं सीबीआई अपने पद का दुरुपयोग कर रही हैं। इस षड्यंत्र के पीछे भाजपा है। भाजपा पश्चिम बंगाल में अशांति फैलाने के लिए एवं यहाँ के तृणमूल कांग्रेस को कमजोर करने के लिए एक सुनियोजित तरीके से काम कर रही है। इन सब षड्यंत्र के पीछे मात्र तृणमूल कांग्रेस के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नीचा दिखाना है। राज्य में अशांति लाने के लिए ईडी एवं सीबीआई नित्य नए ढंग से पश्चिम बंगाल में अशांति फैला रही है, लेकिन लोकतांत्रिक पद्धति से चलने वाले इस राज्य में न तो भाजपा का षड्यंत्र चलेगा और न ही सीपीएम का। आज के इस आंदोलन में उपस्थित राज्य के तृणमूल छात्र परिषद के सचिव आमिर सिद्दीकी ने कई बातें कही। আমাদের পথ অবরোধ বা প্রতিবাদ সভা যেটা গতকাল থেকে চলছে ছাত্র এবং যুব সারা রাজ্য জুড়ে এবং রানীগঞ্জ আজকে হয়েছে, আমাদের কারণ হচ্ছে ইডি সিবিআইয়ের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই নয়। আমাদের লড়াই হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে ইডি সিবিআইকে কাজে লাগাচ্ছে এবং তাদের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোকে আক্রমণ করার চেষ্টা করছে এবং শেষ করে দেওয়ার চক্রান্ত করছে, তার বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই। আমাদের লড়াই যে গরু পাচার যে হচ্ছে বর্ডার দিয়ে, সেই বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স কাদের আন্ডারে? কেন্দ্রীয় সরকারের আন্ডারে। আজকে কয়লা যে পাচার হচ্ছে তার দেখাশোনা দেখভালের দায়িত্ব সিআইএসএফের, তার দেখভাল হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের। তাই আমাদের একটাই প্রতিবাদ ছাত্র যুবর যে যদি ইডি সিবিআই তদন্ত হচ্ছে সেটা নিরপেক্ষ তদন্ত দাবিতে আমরা রাস্তায় নেমেছি। কেন্দ্রীয় সরকার ইডি সিবিআই এই এজেন্সিগুলোকে রাজনৈতিক চরিতার্থ করার জন্য যাতে কাজে না লাগায়। সাধারণ মানুষের আস্থা ইডি সিবিআইয়ের প্রতি আছে এবং আগামী দিনেও থাকবে। আমরা চাই দুর্নীতিগ্রস্ত যারা আছেন তাদেরকে জেলের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হোক, সে তৃণমূলেরই হোক, সে বিজেপিরই হোক, সে কংগ্রেসেরই হোক বা সিপিএমেরই হোক। তাই জন্য আমরা বলছি ইতিমধ্যেই শুভেন্দু অধিকারীকে জেলে ঢোকাতে হবে, সারদা কাণ্ডে যাকে কাগজে মুড়ে টাকা নিতে দেখা গিয়েছে, এবং বিশেষ করে অমিত শাহর ছেলে জয় শাহ যার 400 থেকে 500 গুণ সম্পত্তি বিগত 3 থেকে 4 বছরের মধ্যে বেড়েছে, তার বাড়িতেও ইডির হানাটা যেন হয়, তার দাবিতে আমাদের এই ছাত্র যুবর আন্দোলন, প্রতিবাদ এবং রাস্তা অবরোধ, এই ছোট্ট আন্দোলন আমাদের হয়েছে। আমার নাম मीर सिद्दीक। उनके साथ तृणमूल कांग्रेस के युवा नेता एवं सभापति शुभम भट्टाचार्य, प्रेम बैनर्जी, विश्वरूप दास, इम्तियाज खान आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। মাতালকে পাঠিয়েছে, তার মানে বুঝতে হবে সিপিএম এর সাধারণ মানুষ নেই, মাতালরা ঢুকে গেছে। সিপিএম এর মধ্যে পাগলারা ঢুকেছে, বিজেপির এর মধ্যে পাগলারা ঢুকেছে। আর তৃণমূলে কারা আছে? তৃণমূলে সাধারণ মানুষ আছে। আজকে বলুন তো এই জ্যামের মধ্যে অনেকে আটকেছেন, অনেকের বিরক্তি লাগবে যে কেন রাস্তাটা আটকেছে। কারণ রাস্তাটা আটকেছে এই জ্যামের মধ্যে অনেক মানুষ আছে তারা স্বাস্থ্যসাথীর কার্ডের আপনারা উপকৃত হয়েছেন, তারা কন্যাশ্রী, তাদের বাড়ির মেয়েরা কন্যাশ্রী পেয়েছে, তাদের বাড়ির মেয়েরা রূপশ্রী পেয়েছে, তাদের জয় জোহার পেয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকল্প আপনারা কেউ না কেউ পেয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর আপনারা কালিমালিপ্ত করছেন। কার কথাই করছেন? সব থেকে বড় চোর, নিজেকে বাঁচানোর জন্য যে জার্সি চেঞ্জ করেছে, রাতারাতি বিজেপিতে গেছে, তার কথাই আপনারা শুনছেন। আর রানীগঞ্জে কাদের কথা শুনছেন? যারা রানীগঞ্জটাকে দিলে শেষ করে দিয়েছে, সেই সব কমরেডদের কথা আপনারা শুনছেন। 2021-এ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে আপনাদের আশ্বস্ত করেছে
এভাবেই আপনাদেরকে আগলে রাখবে। তাই সকলে মিলে আমাদের এই প্রতিবাদ, ইডি সিবিআই যেন নিরপেক্ষ তদন্ত করুক এবং শুভেন্দু অধিকারীকে জেলে ঢোকাক, তার বিরুদ্ধে আমাদের আন্দোলন। শুভেন্দু অধিকারীকে জেলে ঢোকাতে হবে। रानीगंज से सम्राट दास का रिपोर्ट, PVTV न्यूज। बंगाल में गौ तस्करी के ऊपर हुए सीबीआई की बड़ी कार्रवाई के दौरान उड़ीसा से एक 4 पहिया वाहन से गाय चोरी का लाइव सीसीटीवी फुटेज हो रहा है तेजी से वायरल। पूरा मामला क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। बंगाल में गौ तस्करी के ऊपर हुए सीबीआई की बड़ी कार्रवाई के दौरान उड़ीसा से एक 4 पहिया वाहन से गाय चोरी का लाइव सीसीटीवी फुटेज हो रहा है तेजी से वायरल। वायरल वीडियो पर भाजपा विधायक अग्निमित्र पाल ने कहा, गाय तस्करी से जुड़े लोग बहुत जल्द जाएंगे जेल, सिर्फ समय का इंतजार है। जब गौ तस्करी मामले में दीदी के मुंह बोले भाई अनुब्रतो मंडल नहीं बच सके, तो ऐसा कौन है जो गौ तस्करी के धंधे से जुड़कर इस अवैध कारोबार को अंजाम देगा और बच जाएगा। না আমি আপনাদের কাছেই প্রথম শুনলাম, কিন্তু আজকে কাউ স্মাগলিং যে করুক, আজকে অনুব্রত মণ্ডলকেও দেখলেন দিদির কোলের ভাই, তাকেও জেলের পিছনে যেতে হচ্ছে। মেনলি কাউ স্মাগলিং, আরও তো অনেক কিছু উনি করেছেন, চুরি, মহিলাদের ইজ্জতও ছাড়েননি। কিন্তু যেই কাউ স্মাগলিং করুক বা দুর্নীতির সাথে যুক্ত, তাদেরকে জেলের পিছনে যেতে হবে, শ্রীঘরে যেতে হবে, শুধু সময়ের অপেক্ষা। যারা চুরি করেছেন কেউ আপনাকে বাঁচাতে পারবে না, স্বয়ং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আপনাকে বাঁচাতে পারবে না। সুতরাং যদি আপনি মনে করে থাকেন যে আপনি তৃণমূলকে সাপোর্ট করতেন কিন্তু তৃণমূলের এই চুরিকে সাপোর্ট করেন না, তাহলে আর বেশি দিন এই দলের সাথে থাকবেন না। বেরিয়ে আসুন, দেশের জন্য কাজ করুন, নয়তো বসে যান, রাজনীতি ছেড়ে দিন। কিন্তু এই দুর্নীতিগ্রস্ত টিএমসি পার্টি এবং তার নেতৃত্ব যে দিচ্ছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তার পার্টিতে থাকবেন না। ইডি সিবিআই এর বিরুদ্ধে তো তৃণমূল ছাত্র পরিষদ এবং যুব কংগ্রেস এই সিসিটিভির কানেকশনটা উড়িষ্যা দেখা যায়, যেখানেই হোক, উড়িষ্যা হোক, উত্তরপ্রদেশ হোক, আমাদের মহারাষ্ট্র হোক, যেখানে খুশি হতে পারে। কিন্তু আজকে যদি কাউ স্মাগলিং এর সাথে কেউ জড়িত থাকে তাহলে তাকে অ্যারেস্ট করা হবে। পার্থ চ্যাটার্জির সময় কেউ রাস্তায় নামেনি, কিন্তু हम बताते चलें कि एक सीसीटीवी फुटेज तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जो वीडियो उड़ीसा का बताया जा रहा है, जिस वीडियो में एक गाय को एक घर के सामने बैठे हुए देखा जा रहा है। उसी दौरान एक सफेद रंग की एक बोलेरो गाड़ी नजर आई, जिस गाड़ी से 2 लोग उतरते हैं। जिन लोगों में से एक व्यक्ति गाय को एक प्लास्टिक के रस्सी से बांधता है और उसे खींचने लगता है। थोड़ी ही देर में उसकी मदद के लिए एक और व्यक्ति आता है और दोनों व्यक्ति मिलकर उस गाय को धक्का देकर बोलेरो गाड़ी के पीछे तरफ से धक्का देकर गाड़ी के अंदर डाल देते हैं और गाड़ी स्टार्ट कर फरार हो जाते हैं। जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, ठीक वैसे ही भाजपा विधायक अग्निमित्र पाल ने मामले को पश्चिम बंगाल से जोड़कर एक बड़ा बयान दे डाला और गौ तस्करी को खुली चुनौती देते हुए यहां तक कह डाला कि गौ तस्करी अब नहीं चलेगी। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। तृणमूल कांग्रेस के पूर्व हैवीवेट नेता सह पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी और बाहुबली नेता अनुब्रतो मंडल के ईडी और सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद टीएमसी ने ईडी और सीबीआई के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। तृणमूल कांग्रेस के विभिन्न प्रकोष्ठों के द्वारा सड़क पर उतरकर आंदोलन किए जा रहे हैं।
कहीं टीएमसी, कहीं टीएमसीपी, कहीं टीएमवाईसी तो कहीं आईएनटीटीयूसी के कार्यकर्ता ईडी और सीबीआई के खिलाफ जुलूस निकाल रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी मुहिम के तहत शनिवार को आईएनटीटीयूसी परिवहन यूनियन के द्वारा आसनसोल सिटी बस स्टैंड के समीप जीटी रोड पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। यह विरोध प्रदर्शन आईएनटीटीयूसी परिवहन यूनियन के नेता राजू आलूवालिया के नेतृत्व में किया गया। বিক্ষোভ হচ্ছে বিজেপির ইশারায় সিবিআই এবং ইডি পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদেরকে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। তার প্রতিবাদে পুরো পশ্চিমবঙ্গের মানুষ রাস্তায় নেমে গেছে। বিজেপি বিধানসভা, লোকসভা, পৌরসভা যতগুলো নির্বাচন হয়েছে গোহারা হেরেছে। বিজেপির সঙ্গে মানুষ নেই। 2024-এ কেন্দ্র থেকে বিজেপি সরকারের সফায়া হয়ে যাবে। এবার কি করছে, প্রত্যেক দিন সিবিআই এবং ইডিকে লালিয়ে তাদেরকে নিজে আঙুল হেলেনে কাজ করে তৃণমূল কংগ্রেস নেতাদেরকে হারান করছে। মানুষরা কিন্তু পথে নেমে গেছে। এভাবে তৃণমূল কংগ্রেসের ওরা যে চক্রান্ত করছে, তৃণমূল কংগ্রেসকে ভাবছে ওরা দমন করে নেবার দাবিয়ে মানে বিজেপির সুযোগ হয়ে যাবে, এরকম কোনো ব্যাপার নেই। সামনেই পঞ্চায়েত নির্বাচন, বিজেপি শূন্য হয়ে যাবে। মানুষরা কিন্তু দেখে নিয়েছে, মানুষের আশীর্বাদ আমাদের মামাটি নেত্রী মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে আছে, তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে মানুষ আছে, এটা কিন্তু মানুষ বারবার প্রমাণ করেছে। এবার যেভাবে সিবিআই ইডিকে আঙুল হেলেনে যেভাবে বিজেপি পশ্চিমবঙ্গতে যে নোংরা রাজনীতি করছে, এইটা এর জবাবটা কিন্তু মানুষ দেওয়ার জন্য রাস্তায় নেমে গেছে। প্রত্যেক জায়গায় আপনি দেখবেন পুরো পশ্চিমবঙ্গতে মানুষ কিন্তু রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করছে। সিবিআই এবং ইডি যারা বিজেপির যারা দুর্নীতিগ্রস্ত নেতা, যাদের এফআইআর নাম আছে, তাদের গ্রেপ্তার করছে না। একতরফাভাবে শুধু তৃণমূল কংগ্রেস নেতাদের হয়রান করছে, তাদের উপরে মিথ্যা মামলা করছে। এটা কিন্তু মেনে নেওয়া যাবে না। আমরা বারবার কিন্তু বলেছি, এই পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপি পালাবার রাস্তা পাবে না। 2024-এ বিজেপি পালাবার রাস্তা পাবে না। আর যতই নোংরামি রাজনীতি করছে, তার কিন্তু মানুষ তার জবাব দেবেন। পঞ্চায়েত নির্বাচনে ওরা কিন্তু শিক্ষা পেয়ে যাবে। राजू आलूवालिया, आईएनटीटीयूसी नेता, आसनसोल। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज 8। अन्नाल थाना क्षेत्र के मुकुंदपुर कोलियरी डिस्पेंसरी के पास कोलियरी आवास में एक बुजुर्ग व्यक्ति 72 वर्षीय इलियास अहमद के घर में बीती रात 11 बजे 3 नकाबपोश लोगों ने बंदूक की नोक पर डकैती को अंजाम दिया। इस दौरान इलियास अहमद ने कहा कि मैं घर में अकेले रहता हूं। कल रात जब मैं होटल से खाना खाने के बाद घर आ रहा था, जैसे ही मैं अपने घर का दरवाजा खोला, तभी एक आदमी पीछे से मुझे बंदूक की नोक पर जबरन घर के अंदर लेकर चला गया। तभी उनके और दो साथी आ गए और अंदर से दरवाजा लगा दिया। उसके बाद मुझसे पूछने लगे कि पैसा कहाँ है, पैसा दो नहीं तो मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा। उसके बाद एक आदमी ने मुझे बंदूक की नोक पर मेरे साथ खड़े रहे और बाकी दो लोग मेरे पूरे घर में तहस नहस कर सारा सामान इधर उधर कर दिया। उसके बाद मेरे बक्से से 27,000 रुपए नगद लेकर फरार हो गए। उन्होंने कहा कि जितने भी लोग थे सभी बंगाल बीरभूम भाषा का उपयोग कर रहे थे। घटना की जानकारी अंडाल थाना को मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर डकैती की जांच शुरू कर दी है। कल रात को आपके साथ क्या घटना हुई? घटना हुई कि रात में खाना खा करके आ रहे थे और जैसे दरवाज़ा हम खोले, एक लड़का पहले आया, हमको धक्का दे करके भीतर कर दिया। उसके बाद में 2 लड़के और आए। आने के बाद हम लोग चारों आदमी जब भीतर आ गए तो वो खुद अपने से दरवाज़ा को बंद कर दिया। बंद करने के बाद वो हमको लेकर के चला आया रूम के भीतर में, और यहाँ वही बार बार पैसा के लिए बोल रहा था कि पैसा कहाँ रखे हो, पैसा हमको दे दो, पैसा कहाँ रखे हो, पैसा दो। जब हम बोल रहे हैं कि ना मेरे पास पैसा नहीं है, तो बक्सा बिस्तरा सब घाट घूट करके छीट छाट करके अपना, और बार बार बोल रहा है कि नहीं दोगे तो मार देंगे, नहीं दोगे तो मार देंगे। कितने जन थे लगभग? कितने जन थे वो लोग? 3 जन था। और ये घटना करीबन कितने बजे रात की है? 10:35 से लेकर के 11 बज के कुछ मिनट के बीच में हुआ। हथियार भी थे उन लोग के पास? हाँ, पिस्टल था, 2 के हाथ में छुरी था। पहचानने में लग रहा था? नहीं, मुंह तो बांधा हुआ था। तो इसकी जानकारी थाना को दी है? शमशेर लोग आए थे, वो लोग जानकारी दिए। थाना आई थी यहाँ पे? थाना आई थी। क्या पुलिस कुछ बोला? जो हम आपसे बोल रहे हैं वही वो लोग पूछा, वही बताया उन लोगों को। मैंने आपके साथ हाथापाई भी हुई है? ना कैश वगैरह क्या ले गया?
अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। पचहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर आरपीएफ पोस्ट बांकुड़ा एवं जीआरपी बांकुड़ा द्वारा संयुक्त रूप से बांकुड़ा रेलवे स्टेशन पर स्निफर डॉग को लेकर जांच अभियान चलाया गया। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर चलाए गए अभियान के तहत आरपीएफ पोस्ट बांकुड़ा और जीआरपी बांकुड़ा के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा स्निफर डॉग चैंप और आधुनिक राजपरित्र HLD एवं ट्रॉली मिरर के साथ एक संयुक्त तोड़फोड़ की जांच अभियान चलाई गई। उपरोक्त जांच के क्रम में बुकिंग कार्यालय, प्रतीक्षालय, प्लेटफॉर्म एवं सर्कुलेटिंग एरिया तथा यार्ड में भी ट्रैक पेट्रोलिंग की गई। आरपीएफ पोस्ट बांकुड़ा के अनुसार जांच के दौरान कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं मिली। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। अखिल भारतीय सांस्कृतिक परिषद की ओर से इस्पात नगरी के ए जोन में स्थित राम मोहन एवेन्यू के राजेंद्र भवन में तुलसी जयंती के उपलक्ष्य पर कविता पाठ एवं वॉक प्रतियोगिता आयोजित किया गया। इस प्रतियोगिता में दुर्गापुर शहर के 12 स्कूल भाग लिए, जिसमें DAV मॉडल स्कूल, कारमेल, अरविंदो विद्यापीठ, झंडाबाद जूनियर हाई स्कूल इत्यादि शामिल है। 150 छात्र छात्राओं ने इसमें भाग लिया। इस दौरान उपस्थित दुर्गापुर स्टील प्लांट के CGM संजीव कुमार सिंह, MIC विद्युत धर्मेंद्र यादव, अखिल भारतीय संस्कृति परिषद के अध्यक्ष JPN ओझा, सचिव उपेंद्र नाथ मिश्रा, प्रेम शंकर चौबे, सीमा श्रीवास्तव, महेंद्र राय, सीताराम साहू, जितेंद्र मिश्रा सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, बेसन, छातू और डालिया। एग्रो फ्रेश, प्योर, फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर, इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3899 रुपए में,
ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइड्स, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, USG, मैमोग्राफी, ECG, TMT, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ECG, NCV, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, PFT, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसे इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। सोनपुर बाजारी महाप्रबंधक कार्यालय परिसर में आजादी के अमृत महोत्सव पर सारे जहां से अच्छा नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय च कर्म में आधारित जीवन। তোমাদের মনে পড়ে বাপুজির সেই কথা? আমাদের এই দেশ জাতি ধর্ম বর্ণের ঊর্ধ্বে, আমরা নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান, विविधेर माझे देखो मिलन महान। एकदम सही बताया मास्टर जी, एकदम सही। किसी ने तो बापू ने कहा, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति। সেই স্বামীজির নতুন ভারতবর্ষের কথা কখন কখন আমাদের মনের মধ্যে গেছে আছে। ওই ছোট্ট কিশোর ক্ষুদিরামের দৃঢ়তার কথা কখন কখন আমরা মনে রেখেছি। বিনয় বাদল দিনেশের এক নতুন ভারতবর্ষের বিশ্বাসের কথা কখন কখন। ये आजादी आया, ये आजादी कोई लड्डू नहीं था जो पूर्वजों ने खरीद के तुम्हारे हाथ में दे दिया और वो आजादी को तुम लोग आज खाओगे, उसको एंजॉय करोगे। रेस्टोरेंट में जा रहे हो, होटल में जा रहे हो अच्छा खाने के लिए। पूरा हिंदुस्तान मेहनत पे टिका है। ये हिंदुस्तान कर्मवीरों का जगह है। हाँ, वो सब नहीं होता है। क्या चाहा था बापू ने? एक किसान का उतना इज्जत होगा जो इज्जत होगा एक सिपाही का, लेकिन मजदूर का वही इज्जत का मौका आया है। एकदम बाएं तरफ हमारे सीनियर मोस्ट एक्टर खड़े हैं, प्रियव्रत मुखर्जी, सीनियर अवार्डमैन बांकोला कोलियारी। और उसके बाद हमारे दूसरा सीनियर पर्सन है हमारे गांधी जी के किरदार में आज से अभी मौलवी दास, सीनियर अवार्डमैन। उसके बाद हमारे हैं नेताजी के किरदार निभा रहे थे आज अंबिकानाथ राय, बांकोला कोलियारी। और हमारे साथ इधर भी है हमारे और एक सीनियर डायरेक्टर साथियों और महिलाएं, आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पे हम सबों ने अमृत का रसपान किया। इतने अच्छे कलाकार और वो भी कोल इंडिया के, बांकोला एरिया से, ये मेरी कल्पना से परे था। बहुत ही सुंदर इन्होंने प्रस्तुति किया है
मैं आग्रह करूंगा सब लोग तालियां दोबारा जोर से बजाएं इनके प्रोत्साहन में। बहुत ही बढ़िया जीवन मतलब लाइवली और रोंगटे खड़ा कर देने वाला ছেড়ে লাগে দীর্ঘশ্বাস হাস্য মুখে অদৃষ্ট রে করব মোরা পরিহাস রিক্ত যারা সর্বহারা সর্বজয়ী বিশ্বে তারা। আমার গান্ধীজি নেতাজি ভগৎ সিং তো নিজের নিজের মূর্তি দিয়েই গেছেন, শুধু যেখানে খনি ভাইদের কথা বলা হয়েছিল আমার একটা ছত্র মনে পড়ে গেল সুনীল গাঙ্গুলির। ডিনামাইট নিয়ে আমি গেছিলাম গভীর থেকে আরো গভীরে, ডিনামাইট নিয়ে আমি গেছিলাম গভীর থেকে আরো গভীরে, আমি ফিরিনি কিন্তু তোমাদের জন্য আগুন এসেছে, তাহলে তোমরা কেন নাম রাখনি আমার নামে শহরের কোন রাস্তা? তবে এসব রাস্তা কাদের নামে তাদের তো আমরা চিনি না। তো আমি সেই যারা কয়লা খনিকে দিনকে दिन उजाला করছে तादेर प्रत्येक प्रति धन्यवाद। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। पूरा देश आजादी का 75वीं वर्षगांठ को आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। आजादी के अमृत के महोत्सव पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी देशवासियों के हर घर तिरंगा फहराने की आह्वान किए हैं। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत पूरा देश में 20 करोड़ तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा गया है। इस कार्यक्रम के तहत हर घर देशवासियों को 13 अगस्त से 15 अगस्त तक अपने घर, कार्यालय और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा लगाने की अपील की गई है। इस कार्यक्रम के दौरान शनिवार को पूरी देश के साथ आसनसोल शिल्पांचल के नागरिक भी पूरी जोश के साथ इस कार्यक्रम में भाग लिए हुए हैं। कहीं जुलूस निकाली गई तो कहीं तिरंगा बाइक रैली, कहीं बच्चों के बीच तिरंगा वितरण किया गया तो कहीं राजनीतिक दल के लोगों ने महापुरुष की मूर्ति को साफ सुथरा कर माल्यार्पण भी किया। इस अवसर पर आसनसोल चेंबर ऑफ कॉमर्स एवं मारवाड़ी युवा मंच के संयुक्त तत्वाधान में एक तिरंगा रैली निकाली गई। ये रैली मुर्गासोल स्थित चेंबर ऑफ कॉमर्स के कार्यालय से शुरू होकर आसनसोल सिटी बस स्टैंड होते हुए गिरजा मोड़ के पास जाकर समाप्त हुई है। जुलूस में शामिल सभी लोग अपने हाथों में तिरंगा लिए वंदे मातरम गाने की धुन पर चल पड़े। इस मौके पर चेंबर ऑफ कॉमर्स के सचिव शंभुनाथ झा, पूर्व अध्यक्ष नीरेश अग्रवाल, आनंद परीख के अलावा समस्त चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदस्य उपस्थित रहे। इस मौके पर शंभुनाथ झा ने कहा कि देश की आज़ादी के 75वें वर्ष पर अवसर पर हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। चेंबर ऑफ कॉमर्स मारवाड़ी युवा मंच अमृत महोत्सव पर ये शोभा यात्रा निकाल रही है, जिससे कि हमारा देश 75वां साल मना रहा है। देश आज़ादी के इस अमृत महोत्सव पर सभी भारतवासियों को आसनसोल चेंबर ऑफ कॉमर्स की तरफ से निवेदन है कि सभी भारतवासी अपने घर, दुकान, ऑफिस में तिरंगा झंडा अवश्य फहराएं। आज हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं। 13 तारीख से 15 तारीख तक आसनसोल चेंबर ऑफ कॉमर्स अपने सारे शिल्पांचल वासियों को इसके लिए मुबारकबाद देता है और आज ये हम लोग रैली निकाले हैं और इसी तरह से 13 से 15 तक हम लोग उत्सव मनाते रहेंगे। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। आजादी का अमृत महोत्सव उपलक्ष्य में बिष्णुपुर के लोकसभा केंद्र के सांसद सौमित्र खां की उपस्थिति में शनिवार को सोनामुखी विधानसभा अंतर्गत नित्यानंदपुर बाजार में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में स्कूलों के बच्चों को लेकर स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। मौके पर उपस्थित सोनामुखी के विधायक दिवाकर घरामी, वरिष्ठ समाज सेवी चंचल सरकार समेत अन्य विशिष्टगण भी उपस्थित रहे। मौके पर सांसद एवं विधायक द्वारा स्कूलों के बच्चों को चॉकलेट एवं केक प्रदान किया गया। साथ ही स्कूल के बच्चों के हाथों में थमाया गया तिरंगा एवं जिसकी विशेषता बताई गई। भारत माता की जय, भारत माता की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जय।
बांकुड़ा से प्रणब कुमार की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। केंद्रीय सुरक्षा बल के द्वारा घर घर तिरंगा अभियान के तहत आजादी के 75वें वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी के तहत शनिवार की सुबह को केंद्रीय सुरक्षा बल दुर्गापुर यूनिट के द्वारा कमलपुर ग्राम में घर घर तिरंगा वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में इलाके के पूर्व इंटरनेशनल स्कूल ने सहयोग किया। इस दौरान उपस्थित केंद्रीय सुरक्षा बल CISF के कमांडेंट शक्तिपाल सिंह शेखावत, AK सिंह, डिप्टी कमांडेंट स्वप्निल उबाले, असिस्टेंट कमांडेंट तथा पूर्व इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर सुब्रतो चैटर्जी सहित केंद्रीय बल सुरक्षा के अधिकारी एवं स्कूल के प्रिंसिपल एवं शिक्षक एवं शिक्षिका के साथ छात्र छात्राएं मौजूद थी। वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा जो आयोजित अमृत महोत्सव का जो प्रोग्राम, आज़ादी का अमृत महोत्सव का प्रोग्राम, उसके अंतर्गत 13 तारीख से लेकर 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान को गति प्रदान करते हुए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल इकाई DSP दुर्गापुर के द्वारा जो यहाँ हमारे पास में एक स्कूल है, पूर्व इंटरनेशनल स्कूल, उनके सहयोग से उनके जो डायरेक्टर साहब जो सुब्रतो चट्टोपाध्याय साहब जो मेरे साथ हैं, उनके साथ मिलकर हम हर घर में जागरूकता अभियान चला रहे हैं। साथ ही साथ हमारे द्वारा लगभग 3000 झंडों का जो वितरण है वो आसपास की इकाइयों में किया गया है। ये जो रैली हम जो निकाल रहे हैं इसमें झंडे का वितरण कर रहे हैं। साथ ही साथ जो स्कूल के जो छात्र हैं, आसपास के जो गांव के जो लोग हैं, ग्रामीण हैं, उन सब में हमारे द्वारा झंडे का वितरण करते हुए राष्ट्रीय जो हमारा झंडा तिरंगा जो है उसके प्रति, राष्ट्रीय जो आज़ादी का जो महत्व है उसके प्रति एक जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, जिससे हर देशवासी के मन में एक स्वाभिमान, एक राष्ट्रीय गौरव की भावना उत्पन्न हो। जय भारत, जय हिंद। दुर्गापुर से निमाय दास का रिपोर्ट, PVTV न्यूज। सामाजिक संस्था आसनसोल राइजिंग की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव पर शनिवार को गोधूली मोड़ स्थित काली मंदिर परिसर में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष दिलीप दे, पार्षद चैताली तिवारी, इंद्रानी आचार्य, मधुमिता चैटर्जी, आशा शर्मा, पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी, भृगु ठाकुर के अलावा संस्था के कई सदस्य उपस्थित थे। इस दौरान चैताली तिवारी ने कई बातें कही। এদিকে মুখটা দেখি। দিদি মুখটা গাঢ় হয়ে যাচ্ছে, একটু উপরে মুখটা গাঢ় হয়ে যাচ্ছে, একটু উপরে বাস।
স্বাধীনতার ৭৫ বছর উপলক্ষে আজ আমরা রক্তদান শিবিরের আয়োজন তো করেইছি। আমরা প্রত্যেক বছরই রাইজিং আসানসোলের তরফ থেকে আমাদের যে রাইজিং আসানসোলের টিম রয়েছে সেই টিম প্রত্যেক বছর একটা রক্তদান শিবিরের আয়োজন আমরা করে থাকি। আজ সরকারি হাসপাতালে এত রক্তর ঘাটতি দেখাতে আমাদের মনে হয়েছে যে এই সময় আমরাও যদি একটু পাশে থেকে কিছু রক্তের ব্যবস্থা করতে পারি, হয়তো অনেক প্রাণ বাঁচাবার সুযোগ করতে পারবো। এই জন্যই আজ আমাদের এখানে আসা এবং তার সঙ্গে সব পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে মিলে আমরা মানুষের পাশে যাতে থাকতে পারি সেই প্রচেষ্টা রেখে এগিয়ে চলব। আজ আমাদের এখানে 50 জন রক্তদাতা রয়েছেন। আমরা সরকারি হাসপাতাল থেকে 50 জন রক্তদানের কথাই বলা হয়েছিল, তাই আমরা এটা করতে পেরেছি। যদি ওনারা আরও কিছু চাইতেন হয়তো আরও কিছু আমরা করে উঠতে পারতাম। আগামী দিনে আরও কিছু করব আমরা। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, टीवी न्यूज।